Tuberculosis remains an important public health problem in India. According to a WHO, every day over 4,000 people now lose their lives to TB and close to 30,000 people fall ill with this preventable and curable disease. Awareness about this disease, its diagnosis and treatment among public will help in controlling the killer disease. At MediCircle, we present to you the World TB Day Awareness Series, where we are featuring in eminent clinical pulmonologists, immunologists, and chest physicians treating tuberculosis, through which we aim to create and aware the public about the impact of TB around the world. Hi, I'm Smita Kumar, and today our guest for the talk is Dr. Sonam Solanki. Dr. Sonam is a consultant chest physician, and she's been associated with many eminent healthcare organizations like Wockhardt, Masina Hospital, and Bhatia Hospital. Hi, Dr. Sonam. Welcome to MediCircle. Hello, nice to be here. And I just like to say I like the work that you all are doing, creating awareness, and it is very much needed because videos and the internet is where patients are turning to get information and understanding the disease. And we are seeing this trend, in our patients as well. We are very privileged to have these kind of series at our healthcare media platform. And we would like to continue with this because awareness is the key. It can save a lot of lives. So Dr. Sonam Solanki, to begin with, India accounts for about a quarter of the global TB burden. In March 2017, the government of India set a target of complete elimination of TB by the year 2025. How much do you think we have been able to cure TB in India by this time? लाइक हमारे भारत सरकार ने बहुत हद तक टीबी को कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने एक ईयर डिसाइड किया था दैट इट वाज 2025 एंड देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ कैंपेन्स बिकॉज अगर हम सोच देखते हैं लाइक अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन एंड उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है वो काफ़ी सारे शोज में और इसमें इसको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं इसको बता रहे होते हैं लोगों को कि भाई अगर आपको खांसी है और काफ़ी दिनों तक है तो आप काइंडली डॉक्टर के पास जाओ तो आपको इस विषय में क्या लगता है कि इस 2025 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है क्या हम 2025 तक टीबी को इंडिया से बिल्कुल हटा पाएंगे या एक टीबी मुक्त इंडिया बना पाएंगे? Well, I mean, it is ambitious. बहुत बड़ा declaration है because as you know कि year after year अपने पास national इनिशियली RNTCP करके था अपना नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम ये वो सो काफी साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं. आई रिमेम्बर माय प्रोफेसर्स यूज्ड टू से कि जब वो लोग पढ़ते थे सो माय बॉस इज 80 years old नाउ एंड ही यूज्ड टू से दैट व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी उनको लगता था कि नो बाय द टाइम मेरा करियर पीक करेगा टीबी हट गया रहेगा. सो इट इज वेरी एम्बिशियस टू claim that TB will be eliminated, not even control. See, control and elimination दो अलग चीजें हैं. So elimination of tuberculosis by 2025 is a very ambitious claim. Having said that, I absolutely support the government when मोदी जी ने declare किया था कि हमको करना. What it means that अपने को सब efforts लगेंगे. All of us have to align our efforts towards elimination, and tab jaake we will reach this target. And because sub steps we are getting new drugs सब कुछ हो रहा है government के point of view से, but major setback जो हुआ है because of the COVID जो भी plans थे a lot of it is delayed by 1 year. Whether it is public private partnership, availability of drugs, newer diagnostic modality जो पहले private sector में था government sector में नहीं था, ये सब government is working towards that. Public private mix was going to be a huge step, and of course it is still happening, but काफी हद तक delay हो चुका है because of the pandemic, at least by a year. But it's a far fought target, but we are all going to work towards it. That's all. So Dr. Sonam, आप हमें बताएंगे कि LTBI क्या है और क्या why it is getting a test done for LTBI important, यानी एक LTBI टेस्ट करना क्यों इतना जरूरी है? Right. So see, firstly LTBI मतलब latent tuberculosis infection. So इसमें क्या रहता है कि अपने बॉडी में टीबी का बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया अपने बॉडी में गया है. Now how our body reacts to the bacteria is depending on our immunity.
सो अगर 10 अंदाजे से अगर 10 लोगों को टीबी का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में गया है, उसमें से एटलीस्ट 40 लोगों को लेटेंट इन्फेक्शन रहेगा, मतलब वो जंतु बॉडी में है बट बॉडी को इन्फेक्शन नहीं हुआ है. And so out of 10 latent TB infection patient, one patient will actually get a disease. So latent TB infection just means that you are infected with the bacteria, but your body does not have the infection yet. अभी इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है लोगों का, यू नो, फॉर डॉक्टर्स, इफ यू सी 100 डॉक्टर्स और उनका लेटेंट टीबी का इन्फेक्शन का टेस्ट करेंगे, ऑलमोस्ट probably 80% of them will be positive. यानी 80 out of 100 डॉक्टर्स की बॉडी में टीबी का जंतु गया है. But the problem occurs कि कोई भी कारण से लाइफ में अगर आपका शरीर का इम्यूनिटी हैज गॉन डाउन, अ सिंपल थिंग लाइक विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रहा है, आप मैल न्यूट्रिशन है, खाने पीने पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो, किसी को डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, किसी को टीबी, किसी को कैंसर है और कैंसर की दवा चालू है जिससे इम्यूनिटी कम हो रहा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसके लिए स्टेरॉइड्स चालू है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स चालू है. तो ये सब पेशेंट्स को जब उनका इम्यूनिटी कम होता है तो ये लेटेंट इन्फेक्शन कैन बिकम एक्टिव इन्फेक्शन. तो जब भी हाई रिस्क ग्रुप्स रहते हैं ऐसे HIV पेशेंट्स जिनका CD4 काउंट एक लेवल से कम है, सो ये सब पेशेंट्स में हम एक्टिवली ढूंढते हैं कि कहीं इनमें लेटेंट इन्फेक्शन है कि नहीं. वो करने के लिए पहले हम मांटू टेस्ट करते थे. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू नो, आपके आर्म्स में एक स्मॉल सा इंजेक्शन देते हैं, यू सी वेदर 48 आवर्स में उसका रिएक्शन आता है कि नहीं. आजकल हम एक ब्लड लेवल ब्लड टेस्ट भी करते हैं, इग्रा, विच इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बट थोड़ा यू नो मोर सेंसिटिव देन मांटू टेस्ट. और ये देख के वी अंडरस्टैंड कि वेदर फर्स्ट तो ये पेशेंट को लेटेंट इन्फेक्शन है कि नहीं, एंड अगर ये हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं वेयर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अपने को पता है कि इनका इम्यूनिटी डाउन होने वाला है बिकॉज ऑफ मेडिकेशन और एनीथिंग, वी start treatment for latent infection. Abroad, every latent pre-TB infection is treated. In India, there are specific reasons. आप अगर कोई ऐसी मेडिसिन शुरू करने वाले हैं जिनसे इम्यूनिटी कम है, स्पेशली इन ऑटोइम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आप लेटेंट टीबी को ट्रीट करते हैं. बायोलॉजिक्स थेरेपी जिनको दे रहे हो उनको लेटेंट टीबी को ट्रीट करते हैं. अदरवाइज वेरी ऑफन वी लीव इट अलोन ऑल्सो एंड वी जस्ट मेक श्योर द पेशेंट हैज गुड न्यूट्रिशन एंड रेगुलर फॉलोअप. तो ये गुड, अगर वो पेशेंट के पास मान लो ही और शी इज अ LTBI पेशेंट, अगर उनका ये बैक्टीरिया उनके शरीर में है और फिर भी अगर वो जो टाइम जो आप देते हो एक पेशेंट को कि आफ्टर हैविंग गुड न्यूट्रिशन, अच्छे खान पान, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी, तो क्या अपने आप ये बैक्टीरिया शरीर से खत्म हो जाता है आफ्टर कुछ समय के बाद? So yeah, खत्म हो जाता है is not the word. It may not become an active infection because the nature of the bacteria is such कि किसी के शरीर में, like you know, even in Egyptian mummies के body में TB का बैक्टीरिया पाया गया है. So because the bacteria is such that once it enters the body, it can become like a dormant bacteria कि life निकल जाएगी और वो activate नहीं होगा. But कोई कारण से अगर immunity कम है या high risk में हो तो वो activate हो सकता है. So that is the nature of the bacteria. So of course you can eliminate the disease, but the bacteria can still stay dormant for many years together. Okay. इस पे एक और सवाल है कि काफी अवेयरनेस लोगों में फैलाया जा रहा है भारत सरकार के भी तरफ से और काफी तरफ से कि टीबी एक फुल्ली क्योरेबल डिजीज है, इसको पूरी तरह से पूर्णतया आप इसको क्योर कर सकते हो, इसका इलाज संभव है, ये लाइलाज बीमारी नहीं है. लेकिन फिर भी काफी लोग इससे एग्री नहीं करते फुल्ली, और आपको क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? राइट, सो जस्ट जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि द नेचर ऑफ द बैक्टीरिया इज सच. एक तो क्या है कि फॉर एग्जांपल सिंस अभी काफी लोग कोविड के लिए अवेयर है दैट यू नो कोविड वायरस एंटर्स द बॉडी, अपने को पता है उनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 2 दिन है, 2 या 3 दिन में आपको सिम्टम्स आ जाएंगे. डिजीज होने वाला रहेगा तो 4th-5th डे तक एक्टिव हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी फेज में जाएगा तो 7th-8th डे तक इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और 14 दिन तक निकल भी जाएगा. तो ये जो साइकिल है उस ऑर्गेनिज्म का, अनफॉर्चुनेटली टीबी का ऑर्गेनिज्म सच अ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया दैट आपको आज अगर इन्फेक्शन हुआ है बेस्ड ऑन योर इम्यूनिटी, एक तो इट कैन अफेक्ट एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट फ्रॉम द ब्रेन, the lungs, heart, somebody has involvement of the stomach. So clinical presentation बहुत varied होता है, you know, and by the time you identify कि आपको कुछ तकलीफ हो रहा है 2 महीने भी निकल जा सकते हैं. So many times लोग बोलते हैं कि थोड़ा खांसी आ रहा था, उनको सीरियस नहीं लगा, आप एक्सरे देखे तो दोनों साइड पे पैचेस है, you know, so it's a very slow growing disease. By the time you identify
थोड़ा डिले हो जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन. एंड अनफॉर्चुनेटली बाकी ऑर्गन्स में कुछ नहीं, बट इफ लंग्स आर इन्वॉल्व यू कैन स्प्रेड इट टू अदर्स, यानी आपसे दूसरों को हो सकता है. तो आज आपको इन्फेक्शन हुआ है, 2 महीने बाद अगर आपको पता चला है कि टीबी है और लंग्स का टीबी है, आप 2 महीने में इमेजिन करिए कितने लोगों को मिले रहेंगे मूवी थिएटर में, बस में, एरोप्लेन में, इन योर क्लास, इन योर एनवायरमेंट, कॉलोनी में, and you have possibly infected uncountable people. So that is one of the main reasons that early identification and कॉफ एटिकेट. अभी कोविड के टाइम हम इतना बात कर रहे हैं, बट अदरवाइज आप देखिए कौन मुंह कवर करता है, कौन नैपकिन लेके निकलता है, कौन मास्क पहनता है, स्पिटिंग ऑन द रोड, दीज आर ऑल बेसिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो नॉर्मली भी सिटीजन का होना चाहिए. थोड़ा हाईलाइट हो गया है कोविड की वजह से, बट वी एक्सपेक्ट दैट यस दिस पीपल विल अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई. दूसरी चीज है टैबू, शर्म के मारे वो नहीं बताते कि टीबी है. कितनी बार we see that in patients, they don't want us to disclose to schools, colleges, etc. because लोग एकदम खराब व्यवहार करने लग जाते हैं. So then other thing is we ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबका कि अगर आपके नेबर में भी किसी को, नेबरहुड में किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, प्लीज उसको साइड ट्रैक मत करिए. वो एक दैट इज अ सोशल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी. द थर्ड थिंग इज, ये तो हो गया जस्ट अ जनरल थिंग. बाकी हमारे साइड से मेडिकली व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटमेंट मिनिमम 6 महीने का है. व्हाट हैपेंस इज 2 महीने में पेशेंट को ठीक लग जाता है. दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट. ये तो सादा टीबी है. अगर MDR टीबी है, इट इज अ 2-year ट्रीटमेंट एंड जिसमें 6 महीना कभी कभी इंजेक्शन लेना पड़ता है पेशेंट को. तो इट्स अ डिफिकल्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर द पेशेंट एंड द फैमिली ऑल्सो. सो ये एक अनदर फैक्टर है, कंप्लीटिंग द ट्रीटमेंट. क्योंकि क्या होगा, 2 महीने के बाद आपको ठीक लगेगा, आप ट्रीटमेंट बंद कर दोगे एंड 3 महीने के बाद इट कम्स बैक अगेन. सो वी कॉल इट रिलैप्स और रीएक्टिवेशन. सो ये एक चीज है. एंड दूसरा है कि आधा अधूरा मेडिसिन में कुछ गड़बड़ हो गया, तो आज अगर ये 4 गोली आपकी टीबी पे काम कर रही है, अगर 5 महीने में आपने गड़बड़ करके दवा ली है, यू विल डेवलप समथिंग कॉल्ड MDR और XDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. एंड वो और भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके लिए इतनी इनफ मेडिसिन भी नहीं है तो इतनी इफेक्टिव नहीं है, प्रोलॉन्ग्ड है, कोर्स बड़ा है एंड रिलैप्स रेट भी ज्यादा होता है. सो दीज आर अ फ्यू रीजंस व्हाई वी बीन स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर सो मेनी इयर्स. So, डॉक्टर सोनम, जब भी हम टीबी की बात करते हैं, मुझे लगता है इसको कनेक्ट किया जाता था पहले राज रोग से, बिकॉज लोग कहते थे कि मैल न्यूट्रिशन, जो लोगों को कुपोषण के शिकार, उनको ये बीमारी ज्यादा होती थी. प्लस इस बीमारी में यू हैव टू स्पेंड अ लॉट. आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फल चीजें खानी पड़ेंगी. आप यू हैव टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल. ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको दवाइयों से ठीक होगा. यू हैव टू स्पेंड अ लॉट. लेकिन आप देखो बहुत सारे जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें ये बीमारी ज्यादा हो रही है और बहुत बार वो दवाइयां छोड़ देते हैं, जैसा आप बता रहे हो, कि बिकॉज वो कंटिन्यू ही नहीं करते. कुछ तो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि वो दवाइयां नहीं ले सकते, और साथ ही साथ वो उनके शरीर को हेल्दी रखने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते. तो उनकी भी मजबूरी होती है और कई बार वो दवाइयां छोड़ देते हैं. उन्हें लगता है कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा और शायद वो रिलैप्स करता है. बहुत बार बीमारियों से, जैसे आपने बताया, ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं और बार बार आपको दवाइयां बदलनी पड़ती हैं. तो ये एक तरह का एक लाइक अ सर्कल, जब तक वो पूरी तरह से खत्म ना हो उसको ट्रीट करते रहना. आई थिंक अवेयरनेस इज द की. जागरूकता ही बहुत जरूरी है ताकि लोग इसको समझे. साथ ही साथ आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जैसे इसके साथ लेप्रेसी के साथ एक स्टिग्मा, आई थिंक इसके साथ भी बहुत बड़ा टैबू है. लोग ऐसे लोगों से डिस्टेंस करते हैं, उनसे बातचीत बंद कर देते हैं और बहुत हद तक उनको साइड ट्रैक किया जाता है. वो भी अच्छी बात नहीं है. इसलिए बहुत सारे पेशेंट्स बताना ही नहीं चाहते. अगर उनके स्पूटम में ब्लड भी आ रहा होता है तो भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाते. ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा. सो आई थिंक अवेयरनेस इज द की. कि इस तरह से अगर आपको कुछ भी इस तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि जो भारत सरकार ने तय किया 2025 तक, एज यू सेड, इट इज एम्बिशियस डेफिनेटली. और हम लोग कब कई सालों से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अब तो इंडिया टीबी मुक्त हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ने बहुत सारे ड्राइव्स चलाए, बहुत सारा काम भी हुआ है, बट कहीं ना कहीं जा करके वो स्टक हो जा रहा है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है. तो आपके हिसाब से क्या हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमें कुछ और करना चाहिए? बिकॉज अभी तो कोविड के हिसाब से आपके बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड चेस्ट फिजिशियन, कितने सारे पेशेंट्स हैं. अब जो लोग कवर कर रहे हैं अपने फेस को, नोज को मास्क से, काफी हद तक वो इस इन्फेक्शन को कम कर पा रहे हैं.
क्योंकि अभी कोविड के लिए तो वो लोग सारे प्रिकॉशंस रखते हैं। आई थिंक बहुत सारे एयरबॉर्न डिजीजेस कम हो गए। Look at the numbers, but look at the numbers. जैसे ही जरा सा कोविड भी ठीक हो गया, सबने मास्क छोड़ दिया, and that is the consequence that we are seeing this huge second wave. At least बॉम्बे में हम लोग की अभी हालत खराब हो रही है. So I think that's human behavior. That's human behavior. But अपने को personally responsible, social responsibility, like I said, that we have to understand the implication कि अपने को तो कुछ नहीं हो रहा है. But as a community, there are a lot of implication. And दूसरा cost का ना, government has provided, like we've done this in HIV sector में आप numbers देखिए, उनका program government का काफी successful है. Somehow we are not doing the same in TB because बहुत सारे factors है. It's not as simple as that, you know. जी बिल्कुल बिल्कुल। सो धन्यवाद बहुत डॉक्टर सोनम कि आप हमारे शो पे आए और आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप ऐसी कई सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेडिसर्कल फॉर दिस टॉक शो। थैंक्स डॉक्टर।